So first of all, guys, welcome to this interview session for PMSN. And before we formally start what this interview session is all about, I want to formally congratulate everyone who has qualified the written part of competitive exam. Indeed, result बहुत ज़्यादा time बाद ही announce हुआ है. I remember कि it was in April, 5th April 2019 के written part हुआ था, and I also appeared in that. और रिजल्ट कोई आया है हमारा लास्ट वीक. सो इट इज अराउंड मोर देन 20 वीक्स के इतना जो है वो इतने बड़े अरसे के बाद रिजल्ट आया है. लेकिन जैसे कहते हैं उर्दू में कि भाई देर आए दुरुस्त आयत, शुक्र है रिजल्ट आ गया है. And finally the result is out, the cat is out of the box bag as well. And many congratulations to all those who have qualified. I would also congratulate myself because this is the fourth time, Alhamdulillah, I have qualified the written part. फर्स्ट हमने 2018 मैंने 2018 का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, CSS रजिस्टर्ड इस्लामियात, by 3 marks. CSS 2019, Alhamdulillah, I've been allocated into Police Services of Pakistan. Next, 2018 PMS, Sindh Public Service Commission, I stood 34th and was allocated into PMS group. I also served as Taluk Education Officer at Pir Jogot, Khairpur Miras. And with the grace of God, I again qualified this particular exam in 2019. क्योंकि 2019 का CSS का इम्तिहान दे के बस अगला एग्जाम यही था. That was the last exam I ever appeared. But with the grace of God, this exam also helped me to make hat trick in this competitive exam series. So I can just understand what is the feeling of qualifying this particular written part. बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है इंडिविजुअल्स ने, बहुत ज़्यादा किस्मत का भी रोल है, लेकिन वॉट एवर इट इज़, लेट्स बी thankful to God Almighty, because it is because of His will, it is because of His kind consideration that you have finally crossed that very line, and now you have been you are basically preparing for an interview. Good luck to those again who couldn't qualify this time. Hopefully they would do so next time. So इस इंटरव्यू सेशन को अब हम फॉर्मली लेके जा रहे हैं, तो द ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी मच क्लियर फॉर टुडे. हमने जो ऑब्जेक्टिव्स आज सेट कर रखे हैं, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज एन इंटरव्यू एंड व्हाई इंटरव्यू इज बेसिकली पार्ट ऑफ द सोल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन फर्स्ट प्लेस. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि आपने इस इंटरव्यू के लिए फिर अपने आप को तैयार कैसे कर लेना है. यानी कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटन एग्जाम आर एंटायरली डिफरेंट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरव्यू लेट्स से आर एंटायरली डिफरेंट. तो हमने उनके दरमियान भी एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी है और हमने देखना ये है कि व्हाट वी आर सपोज्ड टू कैरी इन इंटरव्यू, व्हाट वी आर सपोज्ड टू हैव एन इंटरव्यू, और हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे. दैट वुड बी अवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, followed by the second objective कि what is difference between preparing for written exam and preparing for interview of competitive exam. क्योंकि दोनों चीजों को एक ही जैसा समझना, that would be to understatement. You need to draw a fine line as to आपने दोनों को कैसे तैयार करना है. नेक्स्ट इज हम बात करेंगे कि इस सेशन के मुताबिक, इस सेशन में हम इन चीजों के बारे में क्या बात करेंगे. लेकिन बिफोर के हम फॉर्मली पहली चीज की तरफ मूव करें, शॉर्टली माय फ्रेंड दाऊद सलीमी who has stood second position in CSS 2019, he would also be joining me, and we would have mock interviews in days to come as well, जिसमें individual mock interviews नहीं होंगे. That would be panel oriented, जिसमें जो qualified individuals हैं from 2017, 18 and 19, inshallah they would be part of that very panel, so as to make this whole interview more feasible for you and understandable for you as to what should be prepared in this particular set of things. So first thing first, हम पहली चीज की तरफ बात करते हैं कि why an interview, what is an interview. first इस आइडिया के ऊपर बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू बेसिकली है क्या, और आपने इस चीज के बारे में प्रिपेयर अपने आप को जो है वो कैसे कर लेना है. So basically इंटरव्यू आप समझ लें कि एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन का नाम है. एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन जो किसी एक खास सब्जेक्ट मैटर के बारे में हो रही होती है. वन, एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन जिसमें कन्वर्सेशनल इंटेंट क्लियर होता है, स्ट्रक्चर होता है,
and that structure is supported with the convincing facts. लेकिन इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ आपके बोलने का इम्तिहान नहीं है, बोलने के लिए नहीं है रिक्वायर्ड। एट द सेम टाइम इंटरव्यू का जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है वो इन तीन चीजों के ऊपर बॉयल डाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज इंटरव्यू में आ जाती है दैट इज रिलेटेड टू द नॉलेज कंपोनेंट। Second thing is related to the skills component, and third is the attitudinal component of this whole debate. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज जो कि आपसे रिक्वायर्ड है वो यही है कि आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज योर टेक ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज एज टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट आंसरिंग दिस क्वेश्चन अलोन बाय merely stating facts is not enough. आपने उस आंसर के साथ ये भी इंश्योर करनी है कि यू मस्ट बी स्किल ओरिएंटेड इन दिस पर्टिकुलर पैराडाइम। फॉर एग्जांपल, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपकी पहली जज होंगी कि इन व्हाट आर्टिकुलेटेड मैनर यू बेसिकली आंसर दैट वेरी क्वेश्चन, क्योंकि मैनर, मैटर एंड मेथड ऑफ आंसर, ये तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। तो नॉलेज कंपोनेंट के लिए आपने वैसे जो जिन चीजों के ऊपर काम करना है वो है आपके करंट अफेयर्स हो गए, वो है आपके ऑप्शनल्स हो गए, और एट द सेम टाइम आपने पर्सनल नॉलेज भी जहन में रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू आपका 3 मेजर पैराडाइम से पूछा जाता है। स्किल्स ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है उसमें बेसिकली पहली चीज आपकी आ जाती है कि द मैनर इन विच यू कम्युनिकेट। सेकंड चीज आ जाती है द मैनर इन विच यू बेसिकली स्ट्रक्चर योर ऑब्जर्वेशन। काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि जवाब को कंक्लूड ही नहीं कर पाते एक गिवन 30 to 40 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में। तो इंटरव्यू में बेसिकली आपसे कोई इतनी बड़ी इलाबोरेटेड नॉलेज जैसे रिटर्न में पूछी जाती थी वो नहीं होती, आपसे डायरेक्ट टू द पॉइंट एंड अकम्पनीड विद काउंटर क्वेश्चंस, ये वाली जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड है। आपको पता है कि रिटर्न में कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं होता, आपने लिख लिया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज अ स्ट्रेटेजिक विजन, जैंट्राफ का डायलॉग हैज फॉलोइंग चैलेंजेस, बस वो लिख लें। लेकिन उनमें से अगर एक चैलेंज ये पूछी जाए कि व्हाट इज फंडामेंटल इशू एट हैंड रिगार्डिंग प्रिजनर स्वैप between two stakeholders, so ऐसी सूरत हाल में काउंटर क्वेश्चन इज बेसिकली समथिंग दैट इज गोइंग टू चेकमेट यू कि आपकी कॉन्फिडेंस कितना है और आप कितना एलिबोरेटेड मैनर में आंसर कर सकते हैं, और क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ कितनी है। जब तक आपके यहाँ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्लैरिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, तब तक ये सारे का सारा जो आपका आंसर है इट वुड नॉट गेन एज मच पॉपुलर एंड अपील एज इट शुड अदरवाइज गेट। The third is attitudinal perspective. अब attitudinal component से मुराद ये है कि the manner in which you dress up. फॉर एग्जाम्पल, आप देखें कि इंटरव्यू में आप जनरली देखें कि लोग शलवार कमीज पहन के जाते हैं। वेल, दैट इज अवर ट्रेडिशनल ड्रेस, दैट इज अवर नेशनल ड्रेस, वी ओन इट। लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन एटिकेट्स रिलेटेड टू the paradigm of interview, the manner in which you dress up, the manner in which you tie yourself up, and the manner in which you behave regarding particular questions. For example, काफी questions होते हैं हमें जो आ रहे होते हैं, काफी questions ऐसे होते हैं जो कि हमें नहीं आ रहे होते, या ऐसे factual questions भी हमसे पूछे जाते हैं जो हमें given होता है कि we would not be able to answer that. For example, कि अकबर बादशाह जिस हाथी के ऊपर सवारी करता था उस हाथी के जो बच्चे थे उनके नाम क्या थे? Come on, we cannot answer that question. But what is your attitude in those circumstances? In what manner you basically respond to those crises? कभी कभी बड़े practical questions पूछे जाते हैं कि what if you are appointed as a, let's say, DSP in an area where there are tribal feuds, and the people who belong to your caste are basically the aggressors. What would be your attitude in that particular area if you are posted there? So many people take very biased sides, and this is going to be very counterproductive for them. क्योंकि इस साल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो जनरल पीएमएस की सीट्स अनाउंस होती थी उनके बारे में भी क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन जो बकाया पोस्ट हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। इनकेस किसी को नहीं पता तो आखिर में आप मुझे बता दीजिएगा, आई वुड शेयर दोज पोस्ट एज वेल।
So attitudinal component में ये है कि apart from the manner in which you have dressed up, it is very much important to respond to the questions in a very sublime manner as to what is required, what should be the optimistic, positive, as well as the balanced answer. आपके answers में कभी भी sexist, racist या classist tendencies show नहीं होनी चाहिए. और at the same time आपका जो answer है that must be reflecting from your attitude कि you are someone who is plural in nature, who is taking the lead role, who takes basically things head on. जब तक आप इस तरह की अप्रोच नहीं रखेंगे, definitely there would be certain lacunas जो कि आपको पीछे रख देंगे इंटरव्यू में. And remember, ये तीन चीजें हम आगे अपने सेशन में कैरी करेंगे कि आपका नॉलेज एनहांसमेंट भी होती जाए, आपकी आंसर की स्ट्रक्चरिंग भी होती जाए और आपकी जो पर्सनलाइज एटीट्यूड है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरव्यू, टुवर्ड्स आंसरिंग दोज वेरी क्वेश्चंस, वो भी हम इम्प्रूव करते जाएं. So next thing regarding this is कि how not to prepare for interview for competitive exam. हमने देखा है कि रिटर्न में हम जब तैयारी कर रहे थे तो हम एक इश्यू पकड़ लेते थे और उसके हम कोई हर एक डायमेंशन कर लेते थे, 10 से 12 पेजेस का हम कोई एक टॉपिक तैयार कर लेते थे. लेट्स से कश्मीर इश्यू हमने तैयार कर लिया तो छोटी से छोटी बात हमने ऐड ऑन कर ली एंड वी मेड सम लेंथी नोट्स. ऑन द अदर हैंड इंटरव्यू में आपने ये करना है कि एक पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड कोई मेजर 8 से 10 क्वेश्चंस हो, वो आपने तैयार कर लें मिसाल के तौर, और वो बड़े बेसिक भी होने चाहिए, मिडियोकर होने चाहिए और फिर आपके एडवांस्ड होने चाहिए. फॉर एग्जांपल दिस कैन बी एज सिंपल एज व्हाई पाकिस्तान बिलीव्स दैट कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड रीजन. पहला क्वेश्चन ये हो सकता है. फॉर एग्जांपल सेकंड ये हो सकता है कि व्हाट इज इशू विद द लाइन ऑफ कंट्रोल बीइंग मेड परमानेंट बाउंड्री, कि एलओसी को परमानेंट बॉर्डर क्यों नहीं बनाया जाए. नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल हम बना सकते हैं कि व्हाट आर वीकनेसेस ऑफ द मुशर्रफ 4 पॉइंट फार्मूला. नेक्स्ट हम ये से बना सकते हैं कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की क्या सिमिलैरिटीज हैं कश्मीर इशू की रेजोल्यूशन के हवाले से. सो बेसिकली आपने कोई भी जो इशू तैयार करना है उसके लिए जो फंडामेंटल 8 से 10 क्वेश्चन हैं वो तैयार करने हैं और उनके आंसर्स बड़े स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए. Point number one, then explain. Point number two, explain. And third point, explain. कोशिश करें कि हर एक आर्गुमेंट, हर एक आंसर में आपके 3 से 4 आर्गुमेंट्स, टेंजिबल आर्गुमेंट्स होने चाहिए. अब ये बात मैं इतनी आपसे क्यों इतने स्ट्रेस के साथ कह रहा हूँ कि द इशू हैज सरफेस्ड इन लास्ट इंटरव्यू वंस वी अपीयर्ड इन एट सक्कर, हैदराबाद एंड अदर सेंटर्स. तो मेजॉरिटी ऐसी थी जिनकी बेसिक नॉलेज इश्यूज के बारे में बड़ी कमजोर थी. रिटर्न का एग्जाम तो जैसे मैंने कहा कि पास हो गया, लेकिन द पॉइंट इज कि इसमें कोई काउंटर क्वेश्चंस नहीं थे. तो एक सवाल का जब आप जवाब दें तो कोशिश करें कि वो इतना कैलकुलेटेड जवाब हो कि अगर उसी के ऊपर आपका काउंटर क्वेश्चन आ जाता है तो यू वुड बी इन अ पोजीशन टू बेसिकली डिफेंड दैट वेरी क्वेश्चन, दैट वेरी आंसर दैट यू हैव बेसिकली जस्ट पॉइंटेड आउट. सेकंड आपने ये करना है कि लाइक रिटर्न आपने इसमें टेंजिबल इंफॉर्मेशन जरूर कोट कर लेनी है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोट्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, इट कैन बी इन अ परसुएस, इट कैन बी इन द मैनर जिसमें आप रैट्रिक इस्तेमाल कर लें या फिर आप उसमें कोई अच्छी मतलब हल्की फुल्की कोई इंग्लिश में पोएट्री या पोएटिक टोन उसमें लिटरेरी टोन दे सकें. That is basically aimed at summarizing things which otherwise get too elongated and basically miss the point. बाकी इस चीज के बारे में जब हम कल पहला इशू तैयार करेंगे तो वी वुड बी एबल टू नो एज टू व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. जो और चीजें आपने तैयार करनी है वो ये है कि आपने सबसे पहले तो काम करना है अपने पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर. पर्सनल प्रोफाइल जो है वो अपने आप में मल्टीपल चीजें जो है वो कैरी करती है. फॉर एग्जांपल लेट्स से स्टार्टिंग विथ योर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन आपका एक पहला क्वेश्चन है जिससे आपकी जो बात है वो इनिशिएट होगी और वहां से जो पूरी डिबेट है वो इनिशिएट हो सकती है, इनिशिएट यकीनन होगी.
Second is, let's say, personal profile में introduction है, claim to fame है, the region you belong to. For example, somebody is from सक्खर, तो उसने उसके ऊपर बात करनी होगी. Somebody is from लाड़काना, तो उसके ऊपर उससे सवाल हो सकते हैं, etc. And there is a long range जो कि हम इंटरव्यू के एटिकेट्स में कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. You need to work on current affairs. हमने सेशन के लिए 12 मेजर इश्यूज हाईलाइट किए हैं. We will be talking about that. And then you can work on optionals. जिन लोगों के IR या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल्स हैं, तो हम एक क्रैश कोर्स इन क्लासेस के ऊपर रख सकते हैं. इस सेशन का एक ओवरव्यू फाइनल ये है कि आज ओरिएंटेशन डे है. As I told you कि one of my friends, Daud Salimi, would be basically continuing the discussion and he has formally joined us as well. कल हमारी क्लास होगी जिसमें हम 1 घंटे की क्लास लेंगे इंटरव्यू एटिकेट्स के ऊपर, और सेकंड क्लास होगी, मतलब सेकंड पार्ट होगा हमारा डिस्कशन ऑन न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, और हम उन्हें इस मैनर में पढ़ेंगे जिस मैनर में बेसिकली इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जाए. थर्ड इज, हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करेंगे परसों, यानी कि 2 घंटे की क्लासेस आपकी रोजाना होगी, फॉलोड बाय सिविल मिलिट्री रिलेशंस. नेक्स्ट, हम जो आप में से लोग आज शाम तक रजिस्टर हो जाएंगे वही लोग कल वाली क्लास में अलाउड होंगे कि वो क्लास ले सकते हैं. हम उन्हीं इंडिविजुअल्स को फिर एक बायोडेटा फॉर्म भेजेंगे जिनकी इंफॉर्मेशन बेसिकली हम पहले खुद रिव्यू कर लेंगे. दैट वुड बी फॉलोड बाय मिनी मॉक इंटरव्यू, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू. वो हम 15 मिनट का एक इंटरव्यू लेंगे जिसमें आपके जो बेसिक इश्यूज हैं पहले इंटरव्यू के तौर पर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उसमें बेसिकली हमारा पैनल होगा 3 लोगों का, इंडिविजुअल्स फ्रॉम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज वुड बेसिकली बी लीडिंग दिस होल डिस्कशन. Day 5, we will start discussion on domestic issues, followed by day 6, security and foreign policy. Day 7, social political issues, particular focus on sin. Day 8 will be again mini mock interviews. कि अगर हमने डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज 15 मिनट के लिए थे, तो हम मिनी मॉक इंटरव्यूज को 25 मिनट के आपके ले लेंगे, और उसी वक्त आप लोगों को उसका फीडबैक मिल जाएगा, और ये सारा वर्कआउट हम ऑनलाइन करेंगे. Day 9, regional and international issues. Day 10, discussion on remaining issues, जो कि या आप खुद हाईलाइट कर लेते हैं एक आधे, या फिर नए इश्यूज इमर्ज होते हैं. We will be talking about that. Followed by full panel interview, जिसमें हम 4 इंडिविजुअल्स होंगे होपफुली, जो कि आपका फाइनल मॉक लेंगे, या होपफुली 3 जो कि जिन लोगों के टॉप ग्रुप्स हैं are the people who are well acquainted with the dynamics of interview. And on day 12 we will have international relations and political science discussion, अगर आप में से किसी इंडिविजुअल के ये दोनों सब्जेक्ट्स होंगे. And सिर्फ ये नहीं होगा, again there will be concluding remarks and final thoughts and individual assistance to all those who basically face different issues. So हम ये topics इसमें cover करेंगे, जैसे I have just pointed out this whole debate. This is all from my side. Now I would hand over this particular scheme of things to my friend Sir Daud Salimi. He has stood second position in Pakistan in CSS 2019 and has been allocated into Pakistan Administrative Services. उनकी गुफ्तगू के बाद there will be session for questions and answers, and feel free to ask any question. Sir Daud, over to you. Sir Daud, am I audible? In case I am, please unmute yourself. तो उसके बाद फिर आप शुरू करें. Okay. Just wait. Okay. So, Daud bhai, can you just hear me and can you unmute जी yourself? अब हो गया अब फाइनली जी. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you, Sharif, for giving me this opportunity. So a little about myself. वैसे तो इतनी रिच प्रेजेंटेशन के बाद मेरे पास कुछ खास ऐड करने को है नहीं. बहुत अच्छे से आपने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया था.
लेकिन yes, let me start with my introduction. My name, you all know, Muhammad Daud Salimi. I belong to district Hafizabad. Okay, please unmute yourself now. Yeah, थोड़ा सा you can network. make me host if you want to keep other participants muted. Yeah, No, no, I it's think. okay. Just please Yeah. continue. Okay. So as I was saying, I belong to district Hafizabad in Punjab. I did my matriculation from a government school in Hafizabad. Then I did my FSc from Government College Lahore. And afterwards, I did my bachelor's in computer science from UET Lahore. I graduated back in 2017. After that, I did a job in the corporate sector for 3.5 years in Affinity, which is an artificial intelligence company located here in Lahore. And I did my CSS preparation alongside my job. So I appeared in CSS in 2019, and then I continued my job again, and result came out in October, I believe. Yeah, October 10 was the date. And then I did my interview preparation again alongside my job. And 31st December 2019 was the day when I uh, did my interview, gave the interview to the FPSC panel. And after that, my company moved me to USA. And at the time of the result, I was actually in USA. And I had a plan that if the result doesn't come out as per my expectations, then I would continue my job there in the USA. But Allah was so kind. Alhamdulillah, I stood second all over Pakistan. I got the allocation in my desired group in Pakistan Administrative Service. So I resigned from my job and then came back to Pakistan. शरीफ साहब से जस्ट अ मिनट शरीफ से जो ताल्लुक है वो इस सारे सीएसएस के सफर से भी काफी पुराना है. वी यूज्ड टू बी debating colleagues in the debating circuit of Lahore. शरीफ GCU के होते थे, I was in UET. So many a times हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट बोले, बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स पे जो है इनसे वो मुलाकात होती थी. So इनकी काबिलियत का मैं शुरू से ही जो है वो रहा हूँ मानने वाला. और ये कि ही इज़ ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू. जो अभी इन्होंने अपने बारे में मुझे नहीं मालूम बताया है कि नहीं, लेकिन जिस बैकग्राउंड से, जिस लोकेलिटी से ये उठकर मेहनत करके अपनी फैमिली से आज इस मुकाम पर आए हैं, वो इनकी जिस तरह की इनकी मेहनत है और इनकी कंसिस्टेंसी है, उसके बगैर बहुत कम लोगों को मैंने ऐसे करते हुए देखा है. सो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है वो, और डेफिनेटली ही इज अ कॉलीग एज वेल. तो इंटरव्यू के हवाले से तो मेरे ख्याल में शरीफ ने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए आप लोगों के साथ. मेरा रिटर्न का स्कोर 746 था और इंटरव्यू का 210 था. तो इस सेशन में जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा इसे ना Q&A ओरिएंटेड बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों के डेफिनेटली इंटरव्यू को लेकर काफ़ी सवालात होंगे. क्या क्या चीज़ें हैं जो उसमें करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं. मैं अपना एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स विद टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा, बल्कि अभी थोड़े बहुत 5 मिनट में कर भी देता हूँ. उसके बाद मीनवाइल मैं चाहूंगा कि अगले कुछ मिनट्स में 15-20 मिनट आप लोग ना सवालात पूछ ले मेरे से, ताकि बेहतरी है कि आप लोगों की वो कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करने का मौका मिल सके, बजाय इसके कि इसको मोनोलॉग बनाए और सिर्फ मैं ही गुफ्तगू करता रहूं. तो इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से था. आई एम सॉरी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मेरे पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज और सोशियोलॉजी के थे. मेरे पास इंटरव्यू की तैयारी के लिए तकरीबन 2 माह, आई थिंक 2.25 माह का तकरीबन मुझे वक्त मिला था. बिल्कुल 31 दिसंबर को हुआ था. और ये हमारे वक्त पे तो काफी ये अनएक्सपेक्टेडली जल्दी आ गया था स्केड्यूल में. लाहौर का सेकंड फेज मेरा बनता था. आप लोगों का गालबन पीएमएस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज्यादातर जो इसमें लोग हैं, या शायद कुछ सीएसएस वाले भी हैं. लेकिन ये कि मोर और लेस आप लोगों को ऑन एवरेज जो है वो 1.5 से 2 माह ही अपना तैयारी का टारगेट रखना चाहिए, कि उसी में सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने कवर करनी है. ठीक है. तो डेफिनेटली इसमें टाइम मैनेजमेंट, चीजों की प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न की तैयारी के लिए आपके पास एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड होता है. उसमें आप अपना नॉलेज बेस जब बिल्ड करते हैं, उस पर आगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग जाहिर है उस तरीके से नहीं एक्सपेक्टेड होती जिस तरह एक वो इंटरव्यू में होती है. ठीक है. तो लेकिन इंटरव्यू के हवाले से आप लोगों को इन डेप्थ जो है अपने स्ट्रेंथ वाले एरियाज, अपनी वीकनेसेस वाले एरियाज,
वो आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, और सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस जो है ना उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू की डायरेक्शन बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, वो किसी भी जानिब जा सकता है। वो आपकी, जिस तरह शरीफ भाई ने मेरे ख्याल में बहुत 3 वो खूबसूरत इंडिकेटर गिनवाए कि नॉलेज के साथ साथ आपकी स्किल्स का और आपके एटीट्यूड का भी इम्तिहान है, आपकी पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है। रिटर्न तो सिर्फ नॉलेज का आपका जो है वो टेस्ट होता है, राइट। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में ये इन 2 माह में इन चीजों पे काम करना जो है वो काफी जरूरी है। तो मेरे पास भी वो 1.5 से 2 माह थे, उसमें मैं जितने अच्छे तरीके से कर सकता था जॉब के साथ साथ तैयारी मैंने वो की। अपनी पूरी प्रोफाइल जो थी उसको बेहतर तरीके से काफी तैयार किया। प्रोफाइल में आपकी जितनी चीजें आती हैं, आपका बैकग्राउंड, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका अगर वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है सारा वो, आपकी ओवरऑल शौक क्या है, किन चीजों के बारे में आप पैशनेट हैं, आपकी बुक्स, आपकी पर्सनैलिटीज वगैरह, जो जो भी आपके अब तक एक्सपीरियंसेस रहे हुए हैं, जो कि हर इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं, जाहिर बात है, उनमें से कहीं से भी जाहिर बात है वो सवाल की डायमेंशन जो है वो लेकर जा सकते हैं, आपके सब्जेक्ट्स पे जा सकते हैं। इंटरव्यू का रुख मोड़ना जो कुछ हद तक आपके हाथ में होता है, लेकिन काफी ज्यादा उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट भी होता है। तो इस वजह से इंटरव्यू की तैयारी को जो है वो हमेशा, वो जो शरीफ ने बात की थी ना कि एटीट्यूड को इम्प्रूव करने के हवाले से जो है वो जरूर देखना चाहिए कि कोई भी वहां पे सवाल आ जाए, यू मस्ट बी रेडी टू हैंडल इट, टू टैकल इट। ठीक है, जरूरी नहीं है हर चीज आपको आती हो। 2 माह में आप कितना ही अपना नॉलेज बेस बिल्ड कर लेंगे जो पिछले अगर आप 20-22 साल में अब तक नहीं कर पाए। तो नॉलेज का वो इम्तिहान है भी नहीं, यस इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, लेकिन उसके साथ, आई एम सॉरी आजकल असल में काफी ज्यादा बोलने का मौका मिल रहा है, ये दूसरे लेक्चर्स वगैरह भी करवा रहा होता हूँ मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए, फिर वैसे पीएमसी भी हूँ बैच का, तो जाके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बहुत मीटिंग में बोलना पड़ता है, तो गला जो है ना वो जरा नासाज ही है आजकल। तो खैर ये थोड़ी बहुत बातें थी, मेरे ख्याल में मैं अनस्ट्रक्चर्ड इस तरह की इधर उधर की बातें करता रहा हूँ। लेट्स टेक योर क्वेश्चंस नाउ। अपने प्लीज आप हैंड रेस करें। आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रोफिशिएंट इन जूम। कोविड काफी दिनों से चल रहा है, ये नॉर्मल न्यू नॉर्मल है हमारी ये जो ऑनलाइन स्पेस है। तो मेरे ख्याल में जूम की आप लोगों को आगाही तो काफी होगी, तो अपने आप को रैंडमली अनम्यूट नहीं करना आप लोगों ने, यू मस्ट रेज योर हैंड, और फिर तरतीब में आप लोगों के क्वेश्चंस लेके वो आंसर कर देता हूँ। ठीक है, सो प्लीज एनी वॉलंटियर्स जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। जी शरीफ, आप मुझे अगर होस्ट बना दें तो आई बी एबल टू अनम्यूट द पीपल माई सेल्फ। आई थिंक पीपल कैन अनम्यूट देमसेल्व्स एज वेल, और मैं आपको होस्ट भी अभी बना लेता हूँ। गैलेक्सी J5 गो हेड, मैं भी कर लेता हूँ। जी ओके, गैलेक्सी J5 की तरफ से बहुत श्योर है। कैन एनीबॉडी एल्स, किसी और का सवाल है तो यू कैन जस्ट आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आई एम अरशद फ्रॉम हैदराबाद। जी अरशद साहब। हाँ सर, पहले तो आपको आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये मेरी डिजायर थी कि आप पैनल में हो, क्योंकि मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ता रहा हूँ प्रीवियसली। सर मेरा क्वेश्चन आज ये है कि ये जो जैसे सोशियोलॉजी जो है वो मेरा ऑप्शनल था। अब जब सोशियोलॉजी ऑप्शनल की मैं तैयारी करूंगा, जैसे सोशल इश्यूज हैं उसके जर्नल जर्नल टॉपिक्स क्लियर करूंगा, या वही डेप्थ में जिस तरीके से मैंने रिटर्न की तैयारी की थी, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी या मुख्तलिफ कल्चर्स के जो हैं एलिमेंट्स हैं, वो मुझे उस तरीके से करने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम कम है तो चीजें ज्यादा है। जी मैं बता देता हूँ बिल्कुल। इसमें इस तरह है कि आपके जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों ने उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, इन डेप्थ चीजों में नहीं जाना। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आप लोगों को लाजमन होनी चाहिए। मतलब सोशियोलॉजी में आप लोगों ने वो सारे थ्योरिस्ट जो पढ़े होंगे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इब्न खुल्दून, उनकी ओवरऑल थ्योरीज क्या थी, उनकी एप्लीकेशन आज की मॉडर्न दुनिया में क्या है, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है, वो पता होना चाहिए। प्लस ये कि सोशियोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको अगर तो कोई कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं उन पे अप्लाई करने आने चाहिए। ठीक है, लाइक फॉर इंस्टेंस इसकी मैं मिसाल लूं कि
अब सोशल चेंज का उसमें टॉपिक है, तो सोशल चेंज के हवाले से वो किसी भी आपको कोई कंटेम्प्रेरी इशू मतलब बता कर कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी के लाइट में आप इसका हमें कोई हल दें, ठीक है। जेंडर स्टडीज अगर किसी का सब्जेक्ट है तो वो पाकिस्तान में फेमिनिज्म के जो इश्यूज हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो इश्यूज हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन के जो इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों के सामने है, मतलब वो आपसे उन प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन डिमांड करेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे, प्लस वो आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड करेंगे। वो डेफिनेटली इन डेप्थ जाके एक एक सवाल के वो आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके से आप याद रखते थे, उसमें जाहिर है रिटर्न की तैयारी के हवाले से उतना इन डेप्थ करने की जरूरत नहीं है, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी यस, एंड उनकी एप्लीकेशन जो इश्यूज चल रहे हैं वो, ये दो चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। जी, और किसी का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सर शरीफ से एक सवाल है सर। Yes, हेलो, go ahead. सर शरीफ साहब, मेरा आपके साथ बहुत इंटरेक्शन रहा था जब हमने 2K18 के CC18 के एक साथ पेपर्स दिए थे, और आपको तो यू बोथ हैव एक्सपीरियंस ऑफ CSS एंड CC18। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंटरव्यू ऑफ CC एंड CSS? और ये आप बता दें कि जो CSS में, जैसे कि मेरा एक सब्जेक्ट है मुस्लिम हिस्ट्री पीरियड 1, उसमें मैंने सुना है कि कुछ कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्या ये हकीकत है कि वाकई कोई कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में कोई नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म हुई थी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्या इंटरव्यू में? आपका तो एक्सपीरियंस है बहुत CSS का भी और PCS का भी। Thank you, Wahid. I would shortly answer that question. First question first. अच्छा, CSS का जो इंटरव्यू है उसमें साइकोलॉजिकल पोर्शन है, साइकोलॉजिकल डे 1 डे 2, जिसमें आपको लेट्स से एक्सटेम्पोर स्पीच, कमांड टास्क और ग्रुप डिस्कशन भी इंक्लूडेड है। बट सेम इज नॉट ट्रू व्हेन इट कम्स टू PMS एग्जाम, PMS इंटरव्यू लेट्स से 1। सेकेंडली जो डे 2 पे खासतौर पर जो फुल पैनल इंटरव्यू होता है CSS में, FPSC का जो बोर्ड होता है वो इंटरव्यू कर रहा होता है, तो they exactly ask same question in same manner, in same methodology as is case with the SPSC. For example, उनका जो पैराडाइम है वो भी इन तीनों चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है, your personality, your attitude, your skills, and same is true with the SPSC. तो यहाँ पे इस लेवल पे तो दोनों फिर इक्वलाइजर हैं, दोनों में एक सिमिलैरिटी है, एक ही चीज है। एक और चीज थोड़ा सा ये है कि जो FPSC का पैनल है दैट इज अ बिट मोर इंक्लूसिव, और उसमें जो सवालात का स्कोप है वो भी थोड़ा सा नेशनल लेवल पे होता है। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक इश्यूज आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो FPSC में अगर माइनॉरिटी क्वेश्चन की फिर बात हो रही है तो केस ऑफ कन्वर्जेंस इन सिंध हार्डली कोई इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, तो चूंकि जो पैनल है उसने भी घोटकी देखा हुआ है, उसने भी जो है वो 70 मोरो घुमा हुआ है, तो दे practically know as to what is happening, why is happening, and where is happening, and how to basically counter that. तो जो ग्रास रूट लेवल एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू सिंध, वो जो SPSC पैनल का है वो बहुत ज्यादा है, एंड दे गो ऑन डिगिंग अ बिट डीपर एज कंपेयर टू द FPSC 1. At the same time, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस एंड वेल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आते एज लॉन्ग एज एस्पिरेंट्स मेक देम कंट्रोवर्शियल। मतलब ये डायरेक्ट गिवन नहीं होता कि हमने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात ही पूछ लेनी है कि एस्पिरेंट्स मस्ट बी पुट इनटू द फिक्स एंड हम उसके ऊपर कोई वैलिड जजमेंट पास करें। फॉर एग्जांपल अनदर केस इन पॉइंट इसी हवाले से था कि किसी इंडिविजुअल से पूछा गया कि आप फर्ज करें कि आप जो है वो फला सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं और जो मुहर्रम में शिया जुलूस जा रहा है मातम का, आपकी उसके ऊपर क्या पॉलिसी होगी इफ यू आर अपॉइंटेड इनटू द पुलिस? तो you can just answer them in a fair manner, you can just answer them in a manner that is not biased. हजरत अली, हजरत उस्मान या पहले खलीफे की जो लेट्स से इलेक्शन है उसके ऊपर डेफिनेट क्वेश्चंस आते हैं, बट यू मस्ट गो विद द करंट जो भी आपने पढ़ा हुआ है, बट दैट मस्ट बी सपोर्टेड विद द टैंजिबल फैक्ट्स। आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट की जो भी बात कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन योर एनालिसिस दैट इज बेसिकली द आंसर।
यानी कि पहला हिस्सा ये है कि योर आंसर मस्ट हैव दैट टेंजिबल पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि ट्राई नॉट टू ड्रैग दोस क्वेश्चन दोस आंसर्स रादर। जितना आप उन्हें ड्रैग करते जाएंगे उतना ही आप ज्यादा उस बहस में उस पहलू तक चले जाएंगे जहां से फिर वापसी मुमकिन नहीं है, और वहां पे जाने वाले लौट के आते नहीं लेकिन सदाएं लौट आती हैं। फिर रिजल्ट में तो पता चल रहा होता है कि बस सदाएं लौट आई, आप नहीं लौटा। तो माय सिंपल टेक थैंक यू इज दिस ऑन दिस। सर, थैंक यू सर शरीफ साहब, थैंक यू। ओके, मुनीब अहमद प्लीज गो अहेड, हम किसी से भी आप सवाल पूछें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सर दाऊद से है सवाल पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से ना, कि उसको कैसे लेके चलना है और उसका सेशन वगैरह आप करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि मेरा इंटरव्यू है फेज 1 में, तो मैं इसलिए थोड़ा सा कंसर्न था कि अगर उसका सेशन रखेंगे तो कब रखेंगे और लेके कैसे चलना है, तब तक मैं कैसे करूँ इसको। आई थिंक ये स्केड्यूल के हवाले से आपको शरीफ मेरे ख्याल में बेहतर बता देंगे, उन्होंने दिखाया भी था। लेकिन हम देखें, हम सब्जेक्ट वाइज तो इस सेशन में तैयारी नहीं होगी। डेफिनेटली वो कुछ एरियाज ज़रूर हम हाईलाइट करेंगे, वो पिक एंड चूज करेंगे जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरीके से मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी अर्ज किया था कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, तो पॉलिटिकल साइंस के, क्योंकि हमने इंटरव्यू की तैयारी तो एज ए जनरल करवानी है ना, जाहिर है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो हर इंडिविजुअल के वो काफी ज्यादा डिफरेंट होंगे। तो अगर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंटरव्यू के हवाले से अहमियत के हामिल हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ओवरऑल 18th अमेंडमेंट, फेडरलिज्म, न्यू प्रोविंसेस जैसे अभी शरीफ ने जिक्र किया था, वो एक पॉलिटिकल साइंस के डोमेन में आता है। तो आइन हो गया आपका, ओवरऑल फिर सेंटर प्रोमिस रिलेशंस के क्या इश्यूज पाकिस्तान में चल रहे हैं, जुडिशरी का रोल क्या है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, ये इस तरह के टॉपिक्स जो है ना वो हम हाईलाइट करेंगे। और वो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से एक जनरलाइज्ड अप्रोच मेरी होगी। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग शरीफ, लेकिन मेरे ख्याल में ये इस तरीके से चलेगी, क्योंकि हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तो इंटरव्यू के हवाले से तैयारी की इट वुड मेक नो सेंस। आप कुछ ऐड करना चाहें शरीफ प्लीज? अच्छा, एग्जैक्टली जैसे हमने आपको दिखाया 12 दिनों का हमारा टाइम स्केड्यूल, तो हम जो आखिरी क्लासेस हैं उसमें हम कर लेंगे, एक पॉलिटिकल साइंस के ऊपर देख लेंगे, वर्कशॉप कर लेंगे, बट दैट इज अगेन सब्जेक्टेड टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who are into the political science। मतलब एक या दो हैं तो we can go for the general guidelines, लेकिन अगर 5 या 6 लोग हैं तो वहां तक हम जा सकते हैं कि हम उन इंडिविजुअलाइज लोगों के ऊपर उसके ऊपर बात कर लें। वन सेकंड ये है कि कोई भी सब्जेक्ट है आप उसके वैसे भी जो है वो 15 से 20 जो सरफेशियल क्वेश्चन हैं वो तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है या यूएस हिस्ट्री है या कोई भी, तो वो कोई इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं चले जाते कि आप मैक्स वेबर की उस थ्योरी के वो हैगल की इस थ्योरी के साथ रिलेट करें जहां से फिर आप, जैसे हमने कहा, कि वापसी नामुमकिन हो। द क्वेश्चंस आर अ बिट सरफेशियल बट कैन हैव अ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जहां तक उनकी क्लास का ताल्लुक है तो हम सिर्फ आईआर और पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो है वो अभी तक प्लान कर रहे हैं। वन आखिरी टू, बल्कि थर्ड पॉइंट इज के दैट आल्सो डिपेंड्स कि हमारे पास जो दीगर कैंडिडेट्स हैं आया उनका फोकस इस्लामियात उनकी कैसी है, क्योंकि फिर अगर हम सारे सब्जेक्ट करा रहे हैं तो पीपल हैव डिफरेंट डेफिशिएंसीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज वेल, सो दैट इज सब्जेक्ट टू सर्कमस्टांसेस। लेकिन मोर और लेस पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की हम क्लास मुमकिन तौर पर रखेंगे। थैंक यू सर। सर वालेकुम अस्सलाम, प्लीज गो अहेड। सर मेरा ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में सवाल है कि मेरी, अगर मैं फुल सिटी से चालू रखता हूँ तो मैं अपनी सिटी में जो है वो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में किस एस्पेक्ट में और कितने हद तक मतलब कि वो क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं चीज़ों से? सही है, लेट मी आंसर दिस। अच्छा, इसमें डेफिनेटली आपको अपने शहर के बारे में, गिरदो नवाह के बारे में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो वो अच्छा ही है, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस मैं हाफिज़ाबाद से ताल्लुक़ रखता था, तो मैंने हाफिज़ाबाद की सारी हिस्ट्री कवर की थी, शहर का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, वहाँ की क्या क्या ख़ास बात है, एग्रीकल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वहाँ की मशहूर शख्सियात के नाम क्या हैं, पॉलिटिक्स के अलावा भी ऑफ कोर्स अगर कोई रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह रहे हैं, ठीक है, सोशल वर्कर्स वगैरह रहे हैं। फिर ओवरऑल ये कि मेरे शहर के मसले क्या क्या हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस ये एक काफ़ी कॉमन सिनेरियो होता है कि अगर आप लोगों की पहली प्रेफरेंस पैस है या आप लोग पीएमएस वाले हैं, आप लोगों की तो वैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है जनरल, तो अक्सर ये इस तरीके से भी सवाल को तैयार करवाया जाता है कि इफ़ यू आर मेड द डिप्टी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, तो आप वहाँ पे क्या क्या जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे या क्या आवाम के मसाइल हल करने के लिए चीज़ें करेंगे। तो इस हवाले से आपको सारे फिर मसाइल का पता होना चाहिए।
तो ये सारे एस्पेक्ट्स मेरे ख्याल में एक शहर की जाहिर बात है उतने ज्यादा हो भी नहीं सकते, लेकिन जितने होते हैं वो आपको आने चाहिए। वो आप जितना अच्छे तरीके से कर लेंगे उतना ही आपका एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होगा, जाहिर बात है, तो वो अच्छा ही लगेगा। और ये कि जरूरी नहीं होता हमेशा कि वो इस तरीके से सवाल करें भी, लेकिन अगर कर लिया और आपको अपने शहर के बारे में इन बुनियादी चीजों का ना पता हुआ तो वो एक बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ता है। तो इसको अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में शहर को, डिस्ट्रिक्ट को अपने ना तैयार करना चाहिए। वहां पे क्या आजाद बरादरियां कौन कौन सी बस्तियां हैं, कास्ट वगैरह कौन कौन सी हैं, माइग्रेशन अगर हुई है तो किस तरीके से हुई है, डेमोग्राफिक्स वहाँ के क्या क्या है, सोशल डायनामिक्स क्या क्या है, वहाँ के सोशल इश्यूज किस तरह के हैं बाकी इश्यूज के अलावा ना। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में होनी चाहिए कवर। ठीक है। इन एडिशन टू दिस, इसमें वैसे सारी बातें बता दी हैं दाऊद भाई ने। मसलन मेरा इंटरव्यू था सक्खर में और मेरा डिस्ट्रिक्ट है खैरपुर मीरस। तो खैरपुर मीरस में आपको बताया कि तालपुर हुक्मरान रहे, तो उन्होंने खैरपुर की जनरल जोग्राफी एक तो पूछ ली कि खैरपुर के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं। तो जोग्राफी भी आपको अपने इलाके की पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने इन्फॉर्म हमें वैसे पता होती हैं लेकिन हमने उन्हें एक सीरियसली तैयार नहीं किया होता, तो वी ऑफन गेट अ बिट कंफ्यूज। तो अगर आप उन्हें एक बार पेन डाउन कर लें तो दैट वुड बी ट्रूली बेनिफिशियल। जैसे दाऊद भाई ने कहा कि अगर आपको ये वाले सवाल आना है जो कि आपके पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड है, तो उनका एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि आप जिस शहर में रहे आपको इस चीज का नहीं पता। सेकेंडली, कभी कभार उनकी हिस्ट्री से भी कोई एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू कास्ट कलोड़ो एंड उसके बाद फिर जो तालपुर हुक्मरान थे उनका दौर आया, so I was again asked this very question, okay, what were the reasons behind the downfall of the Kaloda dynasty, and in what circumstances Talpurs basically assumed the governance of the Khairpur Miras, or unki states kya thi. So likewise, my point is again exactly the same, कि history, politics, economy, geography, cultural makeup, the various caste basically in that particular district, ये इनके लिए आपको ना बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉट दैट इन टू डिटेल। लेकिन सिंस आप उस डिस्ट्रिक्ट या उस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी एटलीस्ट वेल वर्स्ड इनटू दोज फंडामेंटल फैक्ट्स। So who is next? Wavi by 7, what's your question? अस्सलाम वालेकुम शरीफ साहब। सर मैंने मिस कर लिया था स्टार्ट वाला सेशन, जस्ट मुझे टाइमिंग और ड्यूरेशन का थोड़ा शॉर्ट में बता दें तो काइंडली। ओके अरशद अली, बेसिकली दिस इज अ 12-day सेशन, बाकी इसकी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप कर लेता हूँ। इन 12-day सेशन वी विल बी कवरिंग सम 10 to 12 issues and 3 mock interviews, diagnostic mock जो कि आपका 2 दिन के बाद होगा, then mini mock जो कि आपके previous performance के हिसाब के ऊपर डिपेंडेंट होगा, and then final mock जिसमें हमारा पैनल होगा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का। ये कोई हमारा 12 दिन सेशन चलेगा। बाकी डिटेल्स आपको मैं ना व्हाट्सएप कर लेता हूँ आफ्टर द सेशन। So next is Muhammad. What is your question? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, my question was that what questions should we expect regarding our work experience? Like, if you work somewhere, should you expect questions about the organization or the kind of work you do or the clients you deal with? I'm not exactly sure about this. Please guide me. Yes, definitely. I think you can expect all sorts of questions. So for instance, I did job in the IT sector for 3.5 years. So I had prepared this side of my personality well. I was aware of all the issues that Pakistan's IT sector is facing. I had prepared pragmatic solutions to resolve them in case the interview panelists ask me the questions related to this. Similarly, they can ask you that what kind of challenges did you face in your work life? When was the time you found the pressure too much to handle, and what did you do to overcome that pressure? So it's entirely up to you that how do you want to portray that side of your personality. If you consider your work experience a strength of your personality, then definitely you should project it in your answers, even if they ask questions related to it or not. You should portray that side of your personality in the performa that you will be provided. Like for instance, I had written under the heading the things that you are passionate about. I had written I am passionate about the role of technology in governance, which was directly related to my work experience. So even the chairman FPSC asked me this briefly though,
what does your company actually do, what kind of business and services does it provide in Pakistan. So I was all prepared to answer all types of questions if they had taken their throat, but fortunately they didn't. So you must prepare your work experience and the relevant industry well while appearing in the interview. Okay. A little Okay, sir. Thank addition you. to this, a little bit addition के काफी लोग हमारे हैं जो कि PMS से भी qualified हैं. I mean the people who are already serving into PMS ना कोई 45 to 50 individuals हो गए. तो I remember last year के एक individuals उन्होंने सवाल पूछा कि PMS, PCS और ex-PCS में क्या फर्क है. तो कभी कभार जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं तो उनसे थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सो इन केस यू बेसिकली राइट कि यू आर पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट सर्विस, you at least have that very basic know-how so that you can answer that properly. Thank you, sir. Thank you. Who is next? Kindly unmute yourself. जो भी सवाल पूछना चाहता है ताकि we may proceed further. मैं रिदा फारकाना से बात कर रही हूँ. मुझे मालूम करना है कि कोई भी आंसर जो होता है इंटरव्यू में, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो लाइक फॉर मी इट्स इजी टू कंक्लूड माय आंसर रादर देन स्टार्टिंग इट. तो वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी उस वक्त हो रही होती है, मतलब उसको स्टार्ट कैसे करेंगे कि हाँ मैं एग्जैक्ट यही सवाल मुझसे पूछा गया है, मतलब आई एम नॉट बीटिंग अबाउट द बुश. देखिए इसमें तो डेफिनेटली ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ ही आती है. अगर तो पहली बात तो ये कि आपको उनका क्वेश्चन क्लियर नहीं है और आपको लगता है कि अगर ये क्लियर ना हुआ तो इसके बगैर आप इसे इफेक्टिवली आंसर नहीं कर पाएंगे, तो देयर इज नो हार्म इन आस्किंग देम टू क्लैरिफाई द क्वेश्चन. लेकिन वो जाहिर बात है एक तरीके से कि सर आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है क्या उससे आपकी ये मुराद है या ये दूसरा एस्पेक्ट मुराद है, आप इस तरीके से कर सकते हैं. मैं बिल्कुल अपने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको एक बात बता रहा हूँ. अब मुझे उन्होंने चेयरमैन साहब ने एक सवाल पूछा था मेरे से कि मेरा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था, पॉलिटिकल साइंस भी था. व्हाट इज द प्रेडिकेमेंट ऑफ स्टेट इन द फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स. एंड एट दैट टाइम आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ प्रेडिकेमेंट. एक्चुअली मुझे समझ नहीं आई कि वो इससे पूछना क्या चाह रहे हैं. तो मैंने सर पूछ लिया, सर एक्चुअली थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रेडिकेमेंट. उन्होंने कहा कि फेट क्या है स्टेट की. मैंने कहा ओके. फिर मैंने उसे पूरा वो आंसर किया. सो जाहिर बात है कुछ बाज़ दफा अगर वोकैबुलरी के ऐसे अल्फाज आ जाएं कि जिससे आपको नहीं क्लियर हो रहा क्वेश्चन, यू कैन आस्क. अगर डायमेंशन क्लियर नहीं हो रही यू कैन आस्क. लेकिन अगर आपको सवाल बहुत ओपन एंडेड और ब्रॉड लग रहा है जिसकी मल्टीपल डायमेंशंस बन सकती हैं, तो उस केस में फिर आप अपने सवाल को खुद भी स्ट्रक्चर ऐसे कर सकते हैं कि अगर उनका ये मीनिंग है तो आप वो वाली डायमेंशन पकड़ लें, खुद एनालाइज कर सकते हैं, जवाब देते हुए बता सकते हैं कि सर आपके सवाल के मल्टीपल जो है वो मीनिंग्स निकल सकते हैं. अगर हम इस रुख से आए तो इसका ये वाला आंसर बन सकता है, अगर मैं ये वाली चीज इनकॉर्पोरेट करूं तो उसका ये भी बन सकता है जवाब. फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रैक्टिकल सवाल की आपको मिसाल दे देता हूँ. जैसे मैं अभी करवा रहा था, ये रिसेंट अभी कुछ लोगों को मैंने किया क्लियर कि जी आपसे पूछा जाए कि इज सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस अ लेगेसी ऑफ पार्टीशन और नॉट. अब देखिए इस सवाल के भी तो मल्टीपल डायमेंशंस निकल सकती हैं. इसका एक रुख ये भी है कि क्या जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का इशू शुरू हुआ था पाकिस्तान की तारीख में, उसका उस वक्त पार्टीशन के टाइम के जो फैक्टर्स थे उनसे कुछ लेना देना था या नहीं था. एक तो सिर्फ ये जवाब है कि आप इसको हिस्टोरिकली आंसर करें. एक लेकिन ये भी डायमेंशन है कि लेगेसी से मुराद ये कि क्या वो पार्टीशन ही वाहिद फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि उसने जो मसला क्रिएट किया उसके बाद वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया और सिर्फ पार्टीशन की वजह से ही अब तक जो है वो हल नहीं हो पाया, या ये कि दरमियान में कोई और फैक्टर्स भी इमर्ज कर गए हैं कि जिससे वो पार्टीशन के वक्त तो एक लेगेसी बना था, रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन आज जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कुछ इमर्ज कर गए हैं जिनका पार्टीशन से कोई लेना देना नहीं है और वो मौजूदा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस के. तो आप अपना आंसर देते हुए ये दोनों रुख अपने आंसर में वाजे कर सकते हैं कि हाँ इससे ये भी मुराद है, इससे